بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں مہنگی چینی زندگی میں کڑواہٹ گھولنے لگی۔ لاہور میں چینی کی قیمت 220 روپے کلو تک جا پہنچی۔ عام دکانوں پر پاؤڈر جیسی چینی دستیاب ہے۔ دکانداروں نے باریک چینی کو ناقابل استعمال قرار دے دیا۔ حکومت نے چینی کی قیمت 177 روپے مقرر کر رکھی ہے۔ آٹا بھی مہنگا بیچا جانے کی شکایات سامنے آئیں۔ شہر میں چینی کا بحران سنگین ہو گیا۔ کریانہ فروشوں کی اکثریت کے پاس یا تو چینی موجود نہیں اور اگر کہیں موجود ہے تو پاؤڈر جیسی باریک چینی ہے۔ دکانداروں نے پاؤڈر جیسی چینی کو ناقابل استعمال قرار دے دیا۔ کریانہ فروش کہتے ہیں کہ چینی یا تو ملتی نہیں، پاؤڈر جیسی بھی ملے تو کھانے کے قابل نہیں۔ معیار ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے، جیسے کہ کہہ لیں کہ باریک ہے، پاؤڈر ہے، مکس کہہ لیں، پراپر چینی جس طرح کے پہلے ہمیں سپلائی مل رہی تھی، آ رہی تھی، کسٹمر کی ڈیمانڈ اچھی تھی، بہت تعریف کن تھی کہ چینی موٹی ہے، دانہ صحیح ہے اس کا، مگر اب اس لحاظ سے نہیں آ رہی، زیادہ تر پاؤڈر اور باریک چینی ہے۔ دوسری جانب پیکنگ والی چینی 220 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہونے لگی۔ دکانداروں کے مطابق ضلعی حکام چینی صرف ڈپارٹمنٹل سٹوروں کو دے رہے ہیں، کریانہ دکانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ دسمبر میں بلدیاتی انتخابات کروانے کی تیاریاں۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت حلقہ بندیوں کا آغاز۔ نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 بھی فوری پاس کروانے کا فیصلہ۔ نیا ایکٹ پاس ہوا تو 2022 کی حد اور حلقہ بندی غیر فعال ہو جائیں گی۔ لاہور میں یوسیز کی تعداد 274 سے بڑھ کر 400 ہو جائے گی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور ختم ہو جائے گی۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز وجود میں آئیں گی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس پیر کو ہوگا۔ لوکل انتخابات 2022 کے قانون کے تحت ہوں گے یا 2025 کا نیا قانون لاگو ہوگا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان بلدیاتی ایکٹ 2022 کے تحت حلقہ بندیوں کے آغاز کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلدیاتی ایکٹ 2022 کے تحت حلقہ بندیوں کے آغاز کا فیصلہ کر لیا، جبکہ پنجاب حکومت نے بلدیاتی ایکٹ 2025 کو اسمبلی سے فوری پاس کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کو قائمہ کمیٹی برائے بلدیات نے اتفاق رائے سے پاس کیا۔ حکومتی ارکان اسمبلی کو پیر کے روز ایوان میں 100% حاضری کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ سے ارکان اسمبلی کو باقاعدہ ہدایات جاری کر دی گئیں۔ نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 اسمبلی سے منظور ہونے پر 2022 کی حد اور حلقہ بندی غیر فعال ہو جائے گی۔ بلدیاتی ایکٹ 2025 کے تحت یونین کونسلز کی آبادی 22,000 سے 27,000 نفوس پر مشتمل ہوگی۔ یونین کونسلز میں 9 کونسلز براہ راست الیکشن لڑیں گے۔ یوسیز میں خاتون کونسلر، یوتھ کونسلر، لیبر کونسلر اور اقلیتی کونسلر کی 4 مخصوص نشستیں ہوں گی۔ یونین کونسل کا ہاؤس مجموعی طور پر 13 ارکان پر مشتمل ہوگا۔ یوسی کے ممبر ووٹ کے ذریعے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کریں گے۔ نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے نفاذ پر میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور ختم ہو جائے گی۔ لاہور میں ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز وجود میں آئیں گی۔ ٹاؤن کارپوریشنز کی باقاعدہ اسمبلی ہوگی۔ متعلقہ یونین کونسلز کے چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے ممبرز ہوں گے۔ نئے ایکٹ کے نفاذ پر لاہور میں یوسیز کی تعداد 274 سے 400 سے زائد ہو جائے گی۔ اچھرا بازار کے 66 کروڑ روپے سے ری ماڈلنگ کا فیصلہ۔ انٹری کے لیے 30 فٹ اونچا اسٹیٹ آف دی آرٹ گیٹ بنے گا۔ فرش پر ٹائل ورک، بلڈنگ فرنٹ پر ٹائلز اور اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی۔ ایل ڈی اے بازار کو فیروز پور روڈ سے آخر تک خوبصورت بنائے گا۔ پنجاب حکومت نے ایل ڈی اے کی اچھرا بازار ری ماڈلنگ اسکیم منظور کر لی۔ ایل ڈی اے اچھرا بازار کو فیروز پور روڈ سے آخر تک خوبصورت بنائے گا۔ مین فیروز پور روڈ پر انٹری کے لیے 30 فٹ اونچا اسٹیٹ آف دی آرٹ گیٹ بنایا گا۔ چیف انجینئر 2 ایل ڈی اے مظہر حسین خان کا کہنا ہے کہ اچھرا بازار کو ریونیو ریکارڈ کے مطابق رائٹ آف وے کو کلیئر کیا جائے گا۔ چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ویژن ہے کہ یہ جو پرانے علاقے ہیں، جو پہلے اگنورڈ ہیں، جن پہ پہلے کوئی اس قسم کی توجہ نہیں ہے، ان تمام کو ریویمپ کر کے، ان کی ریویٹلائزیشن کر کے اور ان کو اپ گریڈ کیا جائے، اپ اسکیل کیا جائے، ود دی جو نیو مارکیٹس ہیں ان کی بالکل پیرالل لا کے کھڑا کیا جائے۔ اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہوئے اچھرا بازار کی ریویمپنگ کا ٹاسک جو ہے نا وہ تھرو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایل ڈی اے کو جو ہے نا وہ اسائن کیا گیا ہے۔ چیف انجینئر 2 ایل ڈی اے کا کہنا ہے کہ پورے مین بازار کی بلڈنگ کے فساد کو خوشنما بنایا جائے گا۔ چیف انجینئر 2 ایل ڈی اے کا کہنا ہے کہ فرش پر ٹائل ورک، بلڈنگ فرنٹ پر ٹائلز اور اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی۔ جو مین بازار اچھرا بازار ہے تقریباً 500 میٹر کی لینتھ میں مین بازار کی ریویمپنگ ہمارا اوریجنل جو انیشل سکوپ ہے اس میں، پلس مین فیروز پور روڈ پہ ہم 300 فٹ کی لینتھ میں مین گیٹ بھی بنا رہے ہیں، اینٹری گیٹ بڑا ایک مانومنٹل ہوگا انشاءاللہ، اور 300 فٹ مین فیروز پور روڈ پہ ہم جو ہے اس کی ریویمپنگ بھی ہمارے اسکوپ کا پارٹ ہے۔ اچھرا بازار ری ماڈلنگ کے بعد کسی پوش علاقے کے بازار سے کسی صورت کم نہ ہوگا، جبکہ منصوبے کو 6 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ منصوبے کی آنرشپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جبکہ ایگزیکیوشن ایل ڈی کے ذمہ ہوگی۔ اچھرا بازار میں رات کو دکانوں اور گوداموں کے مال برداری کے لیے صرف ٹریفک کو آنے کی اجازت ہوگی، جبکہ دن بھر بازار ٹریفک فری زون ہوگا۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ درے نایاب، سٹی 42۔
LDA का खजाने को भरने का मिशन गैर कानूनी तामीरात कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने का पैन। गली गली मौजूद ब्यूटी पार्लर्स और हॉस्टल्स रेगुलराइज होंगे। LDA ने काबीना से इजाज़त मांग ली। लैंड यूज़ रूल्स में तरमीम करवा के पार्लर्स और हॉस्टल्स बनाने का नया रास्ता खोलने की इजाज़त मांगी है। LDA ने गैर कानूनी तामीरात और कारोबार को रेगुलर करवाने का नया मंसूबा बना लिया। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने गैर कानूनी तामीरात और कारोबार पर पर्दा डालने के लिए कानून में तरमीम का सहारा ले लिया है। LDA ने कंट्रोल्ड एरियाज में ब्यूटी पार्लर और हॉस्टल्स को कानूनी इजाजत देने का प्रपोजल काबीना को अरसाल कर दिया। LDA ने लैंड यूज रूल्स में तरमीम करा के पार्लर और हॉस्टल बनाने का नया रास्ता खोलने की इजाजत मांगी। ज़राए के मुताबिक काबीना के इजलास में मुजव्विज़ा एजेंडे पर बहस हुई, जिस पर कुछ मेंबरान ने तरमीम न करने पर स्टैंड लिया। ज़राए के मुताबिक LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने गुलबर्ग, जौहर टाउन, इकबाल टाउन, रायगंज समेत दर्जनों इलाकों में खिलाफ ज़ाब्ता पार्लर्स और हॉस्टल खुलवा रखे हैं। हतमी फैसला काबीना के फैसलों के मिनट्स ऑफ मीटिंग में सामने आएगा। ज़राए के मुताबिक एजेंडा फॉरवर्ड करने पर DG LDA ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ताहम फिर काबीना को मूव कर दिया गया था। सरकारी रिहायशों में तरक्याती कामों के लिए 2 अरब 22 करोड़ तलब। GORs में 6 नई तरक्याती स्कीमें ADP 2025-26 में शामिल करने की तजवीज़। स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, वाटर सप्लाई और फ्लैट्स की तामीर भी शामिल है। 6 मंजिला रहायशी इमारतों की तामीर मंसूबे में शामिल है। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने लाहौर में सरकारी अफसरान और मुलाजिम की रहायश गाहों के तरक्याती काम तेज करने का मंसूबा बना लिया। तरक्याती कामों के लिए महकमा सर्विसेज ने 2 अरब 22 करोड़ रुपए का फंड तलब कर लिया। 6 मंसूबों में GORs और वहादत कॉलोनी में 60 पर कलेक्शन व्हील्स की तनसीब शामिल है। फैसल टाउन में 2 नए ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे। GOR 2 और 3 में स्ट्रीट लाइट्स और शहरी सहूलियात की बहाली की जाएगी। वहादत कॉलोनी में सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइन्स की अपग्रेडेशन और पुराने घरों के तज़ीन और आराइश शामिल है। इसके अलावा 1 अरब रुपए की लागत से सरकारी अफसरान के लिए 6 मंजिला रहायशी इमारतों की तामीर भी तजवीज़ की गई है, जिनमें 30 फ्लैट्स और पार्किंग फ्लोर शामिल होगा। सुई गैस कंपनी का घरेलू मीटर्स लगाने का आगाज, मीटर्स नस्ब करने के अहकाम जारी। इजाफी डिमांड नोटिस जमा करवाने वालों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। सार्फिन ने लेटर की बुनियाद पर कंपनी के साथ LNG का मुआहदा किया। सार्फिन को LNG पर मुआहदे के लिए लेटर भिजवाए थे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने LNG की बुनियाद पर सार्फिन के मीटर्स नस्ब करने का आगाज कर दिया। कंपनी के साथ मुआहदे करके इजाफी डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सार्फिन की फहरिस्त जारी कर दी गई। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के हेडक्वार्टर से रीजनल दफातर को फहरिस्त अरसाल कर दी गई। हतमी फहरिस्त के मुताबिक सार्फिन के मीटर्स नस्ब करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह रही कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने सार्फिन को LNG पर मुआहदे के लिए लेटर भिजवाए थे। सार्फिन ने लेटर की बुनियाद पर कंपनी के साथ LNG का मुआहदा किया, जिसके बाद सार्फिन को जमा डिमांड नोटिस पर इजाफी कीमत का वोचर दिया गया। इजाफी कीमत की अदायगी होने पर कंपनी ने सार्फिन के लिए लगाने की फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसके बाद अब मीटर्स लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की माली मुश्किलात बढ़ गई। माली साल 2025-26 में 107 अरब की किल्लत का खदशा। सूबे का मजबूरी रेवेन्यू हदफ 828 अरब के मुकाबले में 720 अरब रहने का इम्कान है। टैक्स रेवेन्यू में 77 अरब, नॉन टैक्स आमदन में 30 अरब कमी का खदशा है। रेवेन्यू अथॉरिटी का हदफ 340 अरब से कम होकर 323 अरब रहने का इम्कान है। सेल्स टैक्स वसूलियों में 17 अरब रुपए की कमी मुतवक्के है। पंजाब हुकूमत की माली मुश्किलात बढ़ गई। माली साल 2025-26 में 107 अरब रुपए के मालियाती शॉर्ट फॉल का सामना मुतवक्के। सूबे का मजमूई रेवेन्यू हदफ 828 अरब रुपए के मुकाबले में सिर्फ 720 अरब रुपए रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू में 77 अरब रुपए और नॉन टैक्स आमदन में 30 अरब रुपए की कमी का खदशा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वसूलियाँ 340 अरब की बजाय 323 अरब रुपए तक महदूद रहने का इम्कान है, जबकि सेल्स टैक्स से भी 17 अरब रुपए की कमी मुतवक्के है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई है, जिसकी वसूली 105 अरब के मुकाबले में सिर्फ 59 अरब रुपए तक महदूद रहने का अंदाजा है। स्टाम्प ड्यूटी की आमदन में 32 अरब रुपए और जमीनों की रजिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू से 7 अरब रुपए की कमी का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह एक्साइज और प्रॉपर्टी टैक्स में मामूली कमी और नॉन टैक्स रेवेन्यू में 30 अरब रुपए की कमी मुतवक्के है। नर्सरी था 12वीं जमात के निसाब में गलतियां रिव्यू के लिए कमेटियों को 5-5 लाख रुपए देने पर गौर। उर्दू, अंग्रेजी, हिसाब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर की कमेटियां बनाई गई। पेक्टा की 5वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में रिव्यू कमेटियों के लिए फंड्स देने का फैसला किया गया है।
नर्सरी तक 12वीं जमात के मुख्तलिफ किताबों के निसाब में गलतियां सामने आने पर रिव्यू के लिए बनाई गई कमेटियों को 5-5 लाख रुपए देने पर गौर शुरू कर दिया। रिव्यू के लिए उर्दू, अंग्रेजी, हिसाब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की कमेटियां बनाई गई हैं। पेक्टा की 5वें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में रिव्यू कमेटियों के लिए फंड्स देने का फैसला किया गया है। तमाम रिव्यू कमेटियों को अलग से मुआवजों की अदायगी की जाएगी। इस वक्त रिव्यू कमेटियों को मुआवजों की अदायगी के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं। कायदो ज़वाबित की मंजूरी के बाद किताबों की रिव्यू करने वाली कमेटियों के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। गाजी रोड, फिरोजपुर रोड पर जगह जगह डंपिंग पॉइंट्स कायम। कूड़ेदान के तरफ गंदगी के ढेर हैं, बदबू और ताफुन फैलने लगा है। डंपिंग पॉइंट के गिर्द कूड़ा जमा, इलाका कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हसनैन अलग से। जी हसनैन। मैं इस वक्त गाजी रोड, फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ और मेरे अकब के जो मनाजिर हैं यहाँ पर, ये मेन रोड फिरोजपुर रोड के ऊपर डंपिंग पॉइंट बनाया गया है LWMC की जानिब से, जहाँ पर जो यहाँ पर सफाई सुथराई करने वाले जो LWMC के वर्कर्स हैं वो कूड़े को यहाँ पर डंप करते हैं। और यकीन जानिए यहाँ पर खड़े होना भी मुहाल हो गया है, ताफुन यहाँ पर उठ रहा है और जो गंदगी है वो यहाँ से आगे ट्रैवल भी कर रही है। यहाँ से जो कचरा है, कूड़ा है जो यहाँ पे फेंका जाता है, वो गाड़ियों के टायरों के साथ लग कर आगे भी जाता है, जिससे जो बीमारियाँ हैं वो भी फैलती हैं, ताफुन भी उठता है। इसके साथ साथ गाजी रोड को जाने वाला रोड और ये मेन फिरोजपुर रोड जो है, यहाँ पर अतराफ़ में जो दुकानदार हैं या फिर जो रहायशी हैं उनको बदतरीन मुश्किलात का सामना है। और उनका ये कहना है कि दिन रात यहाँ पर शदीद किस्म का ताफुन है जो वो उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। और जो LWMC है उनकी जानिब से दावे तो बड़े किए जाते हैं साफ़ सुथरा लाहौर के, ग्रीन एंड क्लीन लाहौर के, लेकिन ये यहाँ पर जो डंपिंग पॉइंट है जो कि मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर है, गाजी रोड जो लिंक रोड है वहाँ पर, तो ये इंतज़ामिया जो LWMC है उसके माथे के ऊपर कलंक का टीका है कि शहर के बीचों बीच ही मेन रोड के ऊपर जो डंपिंग पॉइंट बनाया गया है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, जो मुल्हिका आबादी है, रहायशी हैं या फिर जो यहाँ पर कारोबारी हजरात हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने ये अपील की है कि खुदारा डंपिंग पॉइंट बनाने हैं तो कम अज़ कम ऐसी जगहों पर बनाया जाए जहाँ पर आबादी कम हो या फिर वीराने इलाकों में। जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। सदीका कॉलोनी खोखर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। मेन रोड पर गड्ढे पड़ने से राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। खस्ता हाल सड़कों के बाद ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। अरसा दराज से रोड बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। इलाका मकीनों की जानिब से ये शिकायत सामने आई हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रोमेल से। जी रोमेल। जी बिल्कुल, मुंतखब सियासी नुमाइंदों की अदम तवज्जा और मुतलका जो इंतजामी अदारे हैं उनकी गफलत के बाइस सदीकिया कॉलोनी खोखर रोड के मकीनों को बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के बाइस मुश्किलात का सामना है। तबाहल सड़कों के बाइस सदीकिया कॉलोनी खोखर रोड के जो मकीन हैं उनकी आमदोरफ्त अजीरन बन चुकी है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप, ये जो तबाहल सड़कें हैं इसकी वजह से किन मुश्किलात का सामना रहता है आपको? ये खोखर रोड का ये जोन सा सड़क है, बिल्कुल ही सड़क बन ही नहीं रहा। जब बारिश होती तो इधर कम से कम भी 2 फुट पानी खड़ा हो जाता है। इलाका भी दिक्कत नहीं बना, बकाया सारा लाहौर बन गया, हर गली हर मोहल्ला बन गया। ये सड़क हमको अभी दिक्कत नहीं। बिल्कुल, पूरे शहर लाहौर में तरक्याती काम जो है वो जारी है। ये शिकवा है यहाँ के मकीनों का और उनका कहना है कि हमारा जो इलाका है वो हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमेशा ही इंतखाबात में जो सियासी नुमाइंदे हैं वो बुनियादी सहूलियात की फराहमी के वादे पर वोट लेकर जाते हैं, मगर इनके इलाके में जो सड़कें हैं वो नहीं बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो मुतलका इंतज़ामी अदारे हैं वो भी शिकायत पर इनके मसाइल हल करने में नाकाम है। खोखर रोड सदीकिया कॉलोनी के जो मकीन हैं उनका। जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मॉडल टाउन इत्फाक अस्पताल के सामने नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदी से इलाका मकीन दूर दराज से पानी भरने पर मजबूर। घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आता है जो नाकाबिले इस्तेमाल होता है। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक नहीं करवाया गया। इलाका मकीनों की जानिब से ये बताया जा रहा है। मजीद का कहना है, जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन इत्फाक हॉस्पिटल के सामने मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पे, जो कि एक अरसे से गैर फ़ाल है। और अगर हम वाटर फिल्ट्रेशन की बात कर लें तो मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं कि मेरे अकब में मौजूद ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो इस वक्त कैदो बंद की सोबतें जो है वो काट रहा है। गोया जो है वो कोई जेल हो, यहाँ पर पीने का साफ़ पानी जो है वो मिला करता था किसी ज़माने में लोगों को,
लोगों का ये कहना है कि यहाँ से जो है वो हम अब दूर दराज के इलाकों में जो है वो सफ़र करके पीने का साफ़ पानी जो है वो लेने के लिए जाते हैं, जिसके सबब जो है वो हमें इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि उनका कहना है कि करोड़ों रुपए की मालियत से लगने वाला ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो आज गैर फ़ाल है, जिसके सबब यहाँ पर कई लोग जो है वो पीने के साफ़ पानी से महरूम हो चुके हैं। जबकि यहाँ पर बड़ी तादाद में मरीज़ भी पीने के साफ़ पानी की गर्ज से इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का रुख किया करते थे, लेकिन अब जो है वो बेचारे मायूस लौट कर जो है वो बड़ी बड़ी दुकानों पर जाते हैं और महंगे दामों जो है वो पानी खरीद कर लाते हैं। इससे उनका तमाम तर इंतज़ामिया से अपील करते हैं, यही कहना है कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो फ़ाल किया जाए, ताकि यहाँ पर तमाम तर लोगों के लिए पीने के साफ़ पानी का हसूल जो है वो मुमकिन हो सके और बआसानी जो है वो यहाँ पर आ सकें और यहाँ पर पीने का साफ़ पानी जो है वो लेकर अपने घरों को जा सकें। नहीं तो उनका कहना है कि हमें दूर दराज के इलाकों में जाकर जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी भर के लाना पड़ता है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल जो है वो बन जाती है। इससे हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो तमाम तर लोग। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। बालाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त, इन्वेस्टिगेशन टीम तीफी भट्ट को लेकर लाहौर पहुंच गई है। पुलिस बालाज कत्ल केस में मुलजिम से तहकीकात करेगी। तीफी भट्ट ने दुबई की अदालत में पाकिस्तान जाने और मुकदमात का सामना करने का कहा था। बालाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। पुलिस तीफी भट्ट को कराची से लाहौर लेकर पहुंच गई। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक तीफी भट्ट को दुबई अदालत में पेश किया गया। काजी ने तीफी भट्ट से पाकिस्तान जाने से मुतालिक सवाल किया। तीफी भट्ट ने पाकिस्तान जाने और मुकदमा का सामना करने का कहा। ज़राए का कहना है कि दुबई अदालत ने तीफी भट्ट को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस बालाज कत्ल केस की तीफी भट्ट से तहकीकात करेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत और अवामी खिदमत का इस्तारा समझने जाने वाले मोहम्मद परवेज़ मलिक को बिछड़े 4 बरस बीत गए, मगर इनकी सियासी और अवामी खिदमत आज भी जिंदा हैं। मोहम्मद परवेज मलिक ने हमेशा असूलों, वफादारी और अवामी खिदमत की सियासत की। वो मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं में शामिल थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी पार्टी के बयानिए और क़यादत के साथ खड़े रहने का अज़्म बरकरार रखा। बतौर वफाकी वज़ीर तजारत उन्होंने मुल्की मईशत के इस्तेकाम के लिए अहम इक़दामात किए। बतौर रुकने कौमी असम्बली अपने हल्के की अवाम के लिए साफ पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करवाया। मोहम्मद परवेज मलिक एक नरम गुफ्तार, शफीक इंसान और अवाम के दिलों में जगह रखने वाले रहनुमा थे। सीनियर रहनुमा परवेज मलिक की बरसी पर पार्टी रहनुमा, कारकुन और अवाम उन्हें उनकी खिदमात पर याद करते हैं। अरबाज खान, सिटी 42। सऊदी अरब के वफ्द का दौरा लाहौर, वज़ीर आला मरीम नवाज समेत अहम शख्सियात ने इस्तकबाल किया। मरीम नवाज से सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल की मुलाकात हुई। पंजाब में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर समान, मरियम औरंगजेब, अस्मा बुखारी भी शरीक थीं। सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल का खुसूसी वफ्द लाहौर पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एयरपोर्ट पर वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द की क़यादत पाक सऊदी बिजनेस फोरम के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद आले सऊद ने की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें पाक सऊदी इक्तिसादी ताल्लुकात, सरमायाकारी के मौक़े और दो तरफा तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने सऊदी सफीर की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के लिए घरेलू सामान फराहम करने पर भी शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में पंजाब में सरमायाकारी, तवानाई, सनत और सियाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के हवाले से इजलास मुनक़िद किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि गरीब बच्चों को मरियम नवाज ऑटिज्म स्कूल में मुकम्मल तौर पर मुफ्त थेरेपी और तालीम दी जाए। खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का उसूली फैसला किया गया। इजलास में मजीद 48 नई बसों की फराहमी की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ऑटिज्म स्कूल के बच्चों, असातिज़ा और स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म और डिजाइन की भी मंजूरी दी। NA 129 से उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का UC 78, 77 और 106 का दौरा। अहले इलाका से मुलाकात, मसाइल सुने। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नुमान से मुलाकात के मौके पर सईद अहमद खान, उस्मान भट्ट, एजाज शाह, तैमूर खान मौजूद थे। इमरान भट्ट, गोशी भट्ट, अली रजा कम्बो, इरफान अलवी और मलिक अरशद आवान समेत दीगर भी मौजूद थे। हाफिज मियां नुमान का कहना था गुलशन रावी, इकबाल टाउन समेत सब्जाजार जहाँ जहाँ सीवरेज के मसाइल दरपेश हैं अव्वलीन बुनियादों पर हल करवाएंगे। फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबर नेशनल असेंबली शाइस्ता परवेज मलिक, असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी डॉक्टर वरदा अशरफ, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत रुश्ता लोधी और वाइस चांसलर फातिमा जिना प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल समेत माहिरीन तिब और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की मुनासबत से फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा तकरीब का मकसद अवाम में ज़हनी सेहत की आगाही बढ़ाना और बुरहानों के दौरान ज़हनी सुकून के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज करना था। मेंबर नेशनल असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक का कहना है, ज़हनी सेहत जिस्मानी सेहत जितनी ही अहम है, हमें माशरती सतह पर भी ऐसे इक़दाम करने होंगे जिनसे हर फर्द को मदद तक आसान रसाई हासिल हो। सबसे पहले मुबारक हो मरियम नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब के आज एक सरकारी हस्पताल में मैं फिर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल ये फीलिंग नहीं है कि ये कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। इतना साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड और लेटेस्ट मशीनें यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ के सारा माहौल है वो बदला हुआ है। मोहब्बत करें, मोहब्बतें बांटें और एक दूसरे को समझें और जजमेंटल ना हो। जज करना अल्लाह का काम है, ये उस पे ही रहने दें और हम जो हकूक़ुल इबाद हैं और हमें बार बार उनका हुक्म आया है उसका समझें और लोगों को इस अजियत से बचाएं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सैयद रुश्ता लोधी का कहना था कि माशरे को मस्बत सिमत में आगे बढ़ाने के लिए ज़हनी सेहत से जुड़े मनफी तासुर को खत्म करना और अवाम में इसकी अहमियत उजागर करना नागुज़ीर है। जो मेरे इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं उनकी जिम्मेदारियाँ मुझ पर हैं कि मैं उनकी ज़हनी सेहत का ख्याल करूँ, लेकिन इन तमाम एहतियातों के बावजूद भी अगर कोई बीमारी ऐसी लाहक हो जाती है तो हमें मुआशरे से इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना है कि ज़हनी सेहत के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या साइकेट्रिस्ट के पास जाना एक बहुत बुरी बात है या किसी बदनामी का बाइस है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल का कहना है कि कुदरती आफात, तनाज़ात और वबाओं के दौरान ज़हनी दबाव बढ़ जाता है। ऐसे वक्त में फौरी ज़हनी मदद तक रसाई इंसानियत की बुनियादी ज़रूरत है। जब एक इलनेस मौजूद है तो उसका इलाज सुन्नत है और वो इलाज के लिए ये जगह है जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं इनके पास आना, और इसको एक स्टिग्मा समझने की बजाय हमें हेल्प करनी चाहिए अपने पीयर्स को, टू हेल्प देम टू गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर एंड गेट द ट्रीटमेंट। तकरीब में माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर आयशा रशीद, प्रोफेसर डॉक्टर बल्कीस शबीर और प्रोफेसर डॉक्टर माजुबीन मसूद समेत फैकल्टी और तलबा ने शिरकत की। शाइस्ता परवेज मलिक ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए मरीजों को मिलने वाली इलाज मुआवजे की सहूलियात को सराहा, जबकि तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने गिरामी में एजाज़ी शील्ड्स भी तकसीम की गयी। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में पंजाब इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का इफ्तिताह सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफत पंजाब ताहिर रज़ा हमदानी ने सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा महबूब आलम चौधरी और नामर लिखारी सोफिया बेदार के हमरा फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में पंजाब मैस इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर ताहिर रज़ा हमदानी ने सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच और सोफिया बेदार के हमरा फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। फेस्टिवल में पाकिस्तान समेत दुनिया के 7 ममालिक के आर्टिस्ट शिरकत कर रहे हैं। फेस्टिवल का मकसद पंजाब के सकाफती हुस्न को उजागर करना है। पंजाब में थिएटर की जड़ें लोक दास्तानों, किस्सों व कहानियों और सूफियाना रवायतों में पिन्हा है। पंजाब की धरती ने ऐसे फनकार पैदा किए जिन्होंने मुकालमा को आर्ट बना दिया। फेस्टिवल के पहले रोज फोक गुलकार आरफ लोहार व दिगर ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। शायकीन भी दाद दिए बगैर न रह सके। बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैं तो पिछले 40 साल से इस फील्ड में हूँ और मैं ये चाहती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि परफॉर्मिंग आर्ट्स और स्पोर्ट्स ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनके ऊपर जितना हम ध्यान देंगे उतना हमारा यूथ जो है ना जितना इसमें इन्वॉल्व होगा उतना हमारा कल्चर अच्छा होगा। I'm Christina Yiftaki. I'm from the delegation from Greece. I'm performing on Monday, 13th of October. I'm very amazed about the Punjab Mas International Festival. Today it was it was a stunning night. I enjoyed a lot the performance inside the hall. हम पहले भी फेस्टिवल एंजॉय करते हैं लेकिन आज बहुत ज़बरदस्त रहा है फंक्शन। मेरा बेटा स्पेशली आया आरफ लोहार के लिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा मोहम्मद महबूब आलम चौधरी ने तमाम मेहमानों को सोवेनियर पेश किए। इस मौका पर आर्टिस्टों ने पंजाब के सकाफती रंग पेश किए। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। डोलमन मॉल में इन्वेस्टर वीक एंड एक्सपो 2025 सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी और SCCP की जानिब से एहतमाम किया गया। एक्सपो में मुख्तलिफ बैंकों, ब्रोकरेज हाउसेज, म्यूचुअल फंड कंपनीज ने हिस्सा लिया।
इन्वेस्टर वीकेंड एक्सपो 2025 का डॉल्फिन मॉल में इनेकाद सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी और SECP की जानिब से तमाम किया गया। एक्सपो में मुख्तलिफ बैंकों, ब्रोकरेज हाउसेज, म्यूचुअल फंड कंपनीज की जानिब से भरपूर शिरकत की गई। तकरीब में मुख्तलिफ बैंकों, ब्रोकरेज हाउसेज, म्यूचुअल फंड की जानिब से शुरका को अकाउंट खुलवाने समेत दीगर सहूलियात बारे आगाही फराम की गई। कंसल्टेंट फाइनेंशियल मार्केट समीर अहमद का कहना था CDC की छत तले लोगों को सरमायाकारी का सुनहरी मौका फराम किया गया। इन्वेस्टर वीकेंड है, मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा इवेंट है। इसमें लोगों की जहाँ आएंगे उसके बारे में जानेंगे, मार्केट के बारे में, और उसकी वजह से फिर और इन्वेस्टमेंट के और एवेन्यूज़ खुलते हैं और एक अवेयरनेस बढ़ती है। CEO यासिर महमूद कंपनीज डॉक्टर यासिर महमूद का कहना था फाइनेंशियल लिटरेसी रेट डेवलप करने के लिए हमें सरमायाकारी करना होगी। ये एक बहुत ही अच्छा फोरम था जहाँ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड अदर ब्रोकरेज हाउसेस ने भी पार्टिसिपेट किया। ज़रूरी है कि इस तरह के और भी ज़्यादा इवेंट्स होने चाहिए। हेड ऑफ प्रोडक्ट्स अब्दुल नासिर कोठारी ने भी इज़हार ख्याल किया। इसका मकसद ये होता है कि पाकिस्तान में सेविंग कल्चर बहुत कम है। दुनिया भर में लोग बहुत सारा कमाते हैं और सेव भी करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारा लोग ज़्यादातर खर्चे पे ज़्यादा फोकस है। तो इस करने का अवेयरनेस लानी है कि अगर आप कुछ कमाते हैं तो आप किस तरह उसको सेव कर सकते हैं। CDC नुमाइंदगान का कहना था कि लोगों की आगाही के हवाले से CDC की जानिब से शहर शहर आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। कैमरामैन नदीम के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट के ज़ेर-ए-तमाम 40वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। एसोसिएशन के अहदेदारों समेत गैर मुल्की मंदोबे ने शिरकत की। किसी भी बीमारी की तशखीस में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का क्या किरदार है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तकरीब में सदर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन बुखारी, प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैनब रिजवी, प्रोफेसर अख्तर सोहेल चुगताई, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद, प्रोफेसर फरवा बतूल, प्रोफेसर स्टीवन बिलिंग्स और डॉक्टर उमर चुगताई समेत पैथोलॉजी के शोबे से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन बुखारी का कहना था कि पैथोलॉजी वो शोबा है जो इंसानी जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को माइक्रोस्कोप से देखता है कि बीमारी कहाँ, कैसे और क्यों हुई। पैथ एक बीमारी को कहते हैं, लॉजिस बीमारी की तशखीस करने वाली शोबे को कहते हैं। और जितनी भी लेबॉर्ट्री के डिजीज़ होती हैं, टेस्ट कराते हैं, कोई भी बीमारी हो, आपको टाइफाइड हो, जब तक लैब नहीं बताएगी, पैथोलॉजी नहीं बताएगी, आपको नहीं मालूम होगा कि वो आपको ये टाइफाइड है या नहीं है। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैनब रिजवी ने कहा कि पैथोलॉजिस्ट खुलियों, टिश्यूज और एज़ा की सतह पर होने वाली तब्दीलियों का मुताला करता है। हमने इंट्रोड्यूस करवाया कि हम किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के और बहुत से नए तरीके जो हैं वो बीमारियों की तशख़ीस के लिए लाएं। इसमें हमारी हिस्टोपैथोलॉजी, ओरल पैथोलॉजी, केमिकल पैथोलॉजी और सारी पैथोलॉजी की शाखें इकट्ठी होकर काम कर रही हैं। और इस वक्त तकरीबन 14 मुल्कों से हमारे 26 स्पीकर्स आए हुए हैं। डॉक्टर उमर चुगताई का कहना था कि पैथोलॉजी के जरिए बीमारी की नौयत, शिद्दत और इलाज की समत तय की जाती है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपनी नई टेक्नोलॉजी, नए इक्विपमेंट को डिस्प्ले करेंगी। मकसद यही है कि इस फील्ड के अंदर मज़ीद तरक्की हो, नए आइडियाज़ डिस्कस किया जाए, नई रिसर्च दिखाई जाए कि किस किस तरीके से हम बेहतर इलाज कर सकते हैं। पैथोलॉजी महज लेबॉर्ट्री का काम नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क समझने का इल्म है। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। निशात होटल में डिजिटल लीडर्स अवार्ड्स के तकरीब ब्रांडी की जानिब से एहतमाम किया गया। CEO नेटसोल सलीम गौरी की बतौर मेहमान ख़ास शिरकत। नुमाया मुल्की डिजिटल इनोवेटर्स, CEOs और बिजनेस लीडर्स शरीक हुए। डिजिटल इकोसिस्टम में नुमाया कारकर्दगी की हामिल शख्सियात को अवार्ड्स और शील्ड से नवाजा गया। डिजिटल लीडर्स अवार्ड 2025 की शानदार तकरीब का इनेकाद ब्रांड ई की जानिब से तकरीब का इनेकाद निशात होटल में किया गया। CEO नेटसोल टेक्नोलॉजीज सलीम गौरी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। मुल्क भर से बिजनेस लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और डिजिटल माहिरीन तकरीब का हिस्सा बने। सदर CEO बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद और ग्रुप CEO TPS वर्ल्ड वाइड शहजाद शाहिद को डिजिटल लीडर्स अवार्ड दिया गया। BPL के सैयद अहमद, मेसन कंसल्टेंट के सुल्तान हमदानी और सोफीजर के जफर खान को भी डिजिटल लीडर्स अवार्ड से नवाजा गया। सलीम गौरी का कहना था पाकिस्तान का डिजिटल मुस्तकबिल रोशन है। हमारे एंटरप्रेन्योर्स आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया के साथ चलेगा और इसका फ़ायदा उठाएगा। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड। ये जो अवार्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिकगनाइज करना अपने जो लोग हैं जो मेहनत करके चीज़ें बनाते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी रिकग्निशन क्रिटिकल है। और इस तरह के इवेंट्स हैं वो हमें और करने हैं ताकि लोगों की रिकग्निशन और उनका जो अप्रिसिएशन है वो हम कर सकें। सो जनाब पाकिस्तान तो माशाल्लाह इन द बैंड वगैरह है और पाकिस्तान इंशाल्लाह गोइंग टू डू वेरी वेल।
चेयरपर्सन ब्रांड ई आशिफा प्राचा का कहना था कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स को सराहना वक्त की जरूरत है। यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे लेकर जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के बाहर के लोगों को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान ग्लोबली जितना काम कर रहा है ना, ये प्रमोट होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ के इंडिविजुअल्स को प्रमोट होना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया। हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के वो लोग। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही।